Good morning, students. Student worksheet 4 yesterday we have started and we have completed question number 1, and now we are coming towards question number 2. The length of hypotenuse of a right triangle is given 13 centimeter. If one of the side of a triangle be 5 centimeter long, find the length of the other side. What is given this 13? This is hypotenuse. और hypotenuse के अलावा बेटे बाकी दो sides को तो हम sides ही बोलते हैं. तो उसने कहा one of the side is given 5. You want to find the other side. Okay, so see, this is the figure of question number 2, that ABC is an right angle triangle. In this hypotenuse is this, and that is given 13 centimeter. और उसने कहा वन ऑफ द साइड, तो हमने कहा ये साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड बट वी हैव टू फाइंड द अदर साइड, एंड द नेम ऑफ द अदर साइड इज परपेंडिकुलर, और सिंपली वी कैन से साइड. Okay, so as you know कि as we are drawing a triangle, that means this is a right angle triangle, so now we can write by Pythagoras theorem. Whenever we are getting the result question in right angle triangle, we have to use Pythagoras theorem. So what is the result of the Pythagoras theorem? That AC is a hypotenuse, so AC square is equal to AB square plus BC square. So AC is 13 square, AB, we are writing AB, and this is 5 square. So yesterday bache we have learned the squares na. So 13 square is 169, AB square plus 25 को इधर ले आओ, then that we are getting AB square and 144 after subtracting, and 144 we can write this is a square of 12. Square cancel, we are getting AB is equal to 12 centimeter. Clear to everyone? Hypotenuse was there, one of the side was there, so we can find the other side in this way. Now the question number 3 is given, the length of two sides of a right triangle are equal. उसने कहा कि राइट ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स इक्वल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यू शुड नो कि राइट ट्राइंगल के अंदर दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो आप जस्ट बाय पुटिंग स्टार ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कंसीडर होती है. इसका मतलब हाइपोटेन्यूज के पैरेलल में या इक्वल में कोई भी और साइड नहीं हो सकती. तो अगर राइट ट्राइंगल उसने कहा कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल, तो इट मीन्स कि हाइपोटेन्यूज तो किसी भी साइड के इक्वल नहीं हो सकता. देन विच टू साइड कैन बी इक्वल? LM एंड MN. तो देखो बेटे मैंने ये सिंबल लगाया है ना कि LM जो है वो MN के इक्वल है, तो हमने कहा यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट LM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू X सेंटीमीटर. ठीक है, जो नहीं गिवन था उसको हमने X मान लिया. ठीक है, नाउ जस्ट सी द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. अब बेटे यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर गिवन है आपके पास. तो अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, what result should be there according to this triangle? This is ln square, write down, ln square is equal to lm square plus mn square. So ln is, देखो अब ये क्या है, यहाँ square of hypotenuse and the name of hypotenuse is ln. तो इसका मतलब ln is not given. What is given? ln square. उसने कहा ना स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जस्ट सी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. तो वी आर राइटिंग दिस इज 800, LM was X, MN was X, this is X square, this is X square. So 800 is equal to 2X square. 2 को नीचे ले आओ बेटा जी, तो ये बन जाएगा 400 is equal to X square.
ठीक है जी। अब 400 किसका स्क्वायर है बेटे? दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 20, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, वी विल गेट x इज इक्वल टू 20। x हमने किसे माना था? So finally we can write, so LM is equal to MN is equal to 20 centimeter. So easy, right? Come towards question number 4. Two poles of height 6 meter and 11 meter. हमारे पास टू पोल्स हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, 6 मीटर एंड 11 मीटर, स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट is 12 meter, find distance between their tops. तो अब ध्यान से देखो बेटे, हमने कहा वन पोल इज ए बी, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर. अनदर पोल इज सी डी हुज हाइट इज 11 मीटर. वन पोल इज 6 मीटर एंड द अदर पोल इज 11 मीटर. अब उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, तो ये इनके फीट है ना बेटे इन दोनों पोल्स के, और कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? दिस इज गिवन 12 मीटर. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. तो इट मीन्स वी वांट टू कैलकुलेट AC. वी वांट टू फाइंड दिस लाइन. अब बेटे ये देखें हम ओवरऑल फिगर, तो वी आर नॉट गेटिंग अ राइट ट्राइंगल, ठीक है, पर हमारा कंसेप्ट तो राइट ट्रायंगल का चल रहा है. तो यहाँ से बेटे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल ड्रॉ वन लाइन AL विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू DB. तो यहाँ बेटे हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे अपनी तरफ से. कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अगर क्वेश्चन में हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो हम खुद कर सकते हैं. तो हमने कहा ड्रॉ AL इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 12 मीटर. तो हमने कहा जैसे ही हमने ये लाइन लगाई, हमने कहा हमारे पास ये भी 12 मीटर आ गया, ठीक है. अब ध्यान से देखो, हमारे पास ABDL क्या बन गई? एक रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. इफ दिस इज 6, तो इस टोटल 11 में से ये कितना आ गया? 6 मीटर. और अगर 11 में से 6 ये है तो CL कितना चला गया? 5 मीटर. इस कंसेप्ट को बेटे ध्यान से समझना. एंड हाउ वी कैन राइट दैट CL is equal to CD minus LD. CL we have to calculate. CD was given 11, टोटल जो सेकेंड पोल था, और उसमें से हमने स्मॉल वाला पोल निकाल दिया, तो ये बन गया 5 मीटर. अब बेटे इस राइट ट्रायंगल में फोकस करो, क्योंकि पोल आपने देखे ना बेटे, बिजली के बोर्ड जो बिजली के जो पोल होते हैं, दे आर एग्जैक्टली स्ट्रेट मेकिंग 90 डिग्री एंगल. तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ गई, राइट ट्रायंगल. सो नाउ in right triangle CLA, but I am doing on next page. In triangle CLA by Pythagoras theorem, ठीक है. अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं तो देखो हाइपोटेनस क्या बनेगा? CA स्क्वायर. तो वी आर राइटिंग, yes, we are writing this is CA square is equal to CL square plus LA square. Clear to you? Now CA we don't know. CL is, जो भी हमने निकाला बेटे, CL क्या निकाला था हमने यहाँ? 5. So this is 5 square and this is 12 square. So 5 square is 25 and 12 square is 144. This is equal to 169. So CA square is equal to 169. किसका square है? 13 का. Square square cancel, and then the distance between their top we are getting 13 meter. Clear to everyone? Now come towards question number 5. Find the length of diagonal of a rectangle. अब उसने क्या कहा, क्या निकालना है? एक रेक्टेंगल बनाओ और उसमें डायगनल की लेंथ निकालो, whose sides are given 15 and 8 centimeter. So let us start question number 5. First of all draw the figure. बेटे यहाँ पे ध्यान से देखो, question 5 figure 5. Now one rectangle is given
and you know कि rectangle is forming 90-degree angle, right na? And the sides of rectangle are given 15 centimeter and 8 centimeter, and we want to find the length of the diagonal. So name of the rectangle is ABCD and BD is a diagonal. Okay, so now what we can write, ध्यान से देखो बेटे, triangle DAB, focus in this triangle. Which type of triangle is this? Again it is a right triangle because one of the angle is given 90-degree. So write down in right triangle ABD by Pythagoras theorem. What we can write, DB means hypotenuse square is equal to AB square plus AD square. DB we have to find. Now AB is given 15 square and AD is given 8 square. 15 square is 225, 8 square is 64, and when we will add we are getting 289. Now 289 is a square of 17, right? So we can cancel this and then we will get dB is equal to 17 centimeter. So this is all about your worksheet 4, 1 to 5 question. You can try the next of the question. Okay, one more question I am explaining to you. Question number 6. It is given the foot of a ladder is 6 meter away from a wall. One ladder is there. पहले तो बेटे ladder को underline करो and write down सीढ़ी, है ना, जो वुडन सीढ़ी होती है या जो दूसरी सीढ़ी होती है. उसने कहा उसका जो फुट है that is 6 meter away from a wall and its top reaches a window 8 meter above the ground. So see the figure of question number 6. Suppose this is ground. ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये है हमारी लेडर, ये हमारा फुट ऑफ द लेडर, और हमने कहा ये हमारी विंडो, और विंडो कितने मीटर अबव है, दिस इज 8 मीटर अबव एंड दिस इज 6 मीटर, फुट ऑफ द लेडर, और ये है हमारे पास लेडर, ये है लेडर. इसको लेडर की शेप भी बना सकते हैं, इसको लेडर बना देते हैं बेटे, है ना. लेडर के लिए क्या करना है, हमें स्टेप्स ही तो दिखाने हैं ना बीच में, सीढ़ी के स्टेप्स, ठीक है. तो हमने कहा ABC, AB जो है डेट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, और विंडो से वो कितनी है 8 मीटर अबव, और ग्राउंड से वो कितनी है 6 मीटर, ठीक है. अब देखो बेटा, उसने कहा कि इफ़ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे that its foot is 8 meter away from the wall. तो अब उसने कहा कि हमने इस लेडर को यहाँ से हटाया और एक 6 मीटर और थी हमारे पास विंडो, ठीक है, और हमने ये वाली लेडर को यहाँ से उठाया और हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया. अब ये फिर से हमारे पास एक लेडर आ गई, ठीक है. और दूसरा पोल क्या था हमारे पास, सपोज L एंड M, ये भी लेडर है हमारे पास कि हमने इस वॉल से हटाकर इस वॉल पे रख दिया, ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, अब ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन में, आई एम डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्रायंगल ABC आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड आई कैन फाइंड हाइपोटेनस. अब जो लेंथ ऑफ द लेडर है, चाहे वो इस वॉल पे काम कर रही है या इस वॉल पे, दैट विल रिमेन सेम. तो यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा, हाइपोटेनस को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, वहाँ से हम बेस निकाल देंगे. सो दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो बेटा.